let us start exercise 3.4. In that, first we shall discuss some terms. Now first, what is a monic polynomial? A polynomial is x in which highest power of x is unity. कोई भी polynomial x में जिसमें highest power x की क्या होनी चाहिए? unity. Suppose मेरे पास कोई polynomial है डिग्री 4 की, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1. Now इसमें जो highest power है ना, इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए. तो उसको हम बोलेंगे मॉनिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल इज नेक्स्ट इन व्हिच हाईएस्ट पावर ऑफ x is unity. Now next is annihilating polynomial. We know that every matrix A satisfies its characteristic equation, so it means that it annihilates the matrix. हमें पता है हर कोई characteristic equation की matrix को satisfy करती है by Cayley-Hamilton theorem. So that means that every matrix annihilates the given polynomial, that is known as the annihilating polynomial. Now what is minimal polynomial? Minimal polynomial is basically a combination of monic polynomial plus degree should be minimum plus annihilating polynomial. इन तीनों का combination हमारे पास क्या आएगा? minimal polynomial. Minimal equation क्या होती है? If fx is of lowest degree with the leading coefficient unity. मतलब ये क्या है? मॉनिक पॉलिनोमियल है क्योंकि लोवेस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. That is only the monic polynomial. Such that fa is 0. मतलब fa क्या कर रहा है? एनिहिलेट कर रहा है. इसका मतलब ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल भी है. Now the polynomial is set to minimal polynomial and the equation is known as the minimal equation. तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे minimal polynomial और उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? minimal equation. Now there is a note. Degree of this equation, minimal equation, is less than or equal to that of degree of the characteristic equation. Basically जैसी होती है equal rare chance होता है, कभी कभी equal हो जाती है. Let's see some theorems based on this. Now first theorem is if hx be any polynomial with a scalar coefficient such that ha is 0. मतलब hx हमारे पास एक annihilating polynomial है and mx is equal to 0 be the minimal equation. mx हमारे पास क्या है? कोई minimal equation है. तो there exists a polynomial qx such that hx is equal to mx qx. मतलब qx जो है वो completely divide करेगी हमारी given equation को. और we can say that minimal polynomial is divisor of any polynomial. मतलब minimal polynomial हर किसी equation को polynomial को divide करती है. हम इसको prove करते हैं. Now we know that hx and mx are two polynomials. These are given as two polynomials. हमें प्रूव करना है कि मिनिमल इक्वेशन जो है वो डिवीजर होती है हर किसी पॉलिनोमियल की. So by division algorithm we can write hx is equal to mx into some qx plus rx. रिमाइंडर आता है. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि rx जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तभी तो ये कंप्लीटली डिवीजन होएगा. तो ये हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ है. नाउ अब मैं इसके अंदर a सेटिस्फाई करती हूँ. ha इज इक्वल टू ma इंटू qa प्लस ra. फाइन. अब ha और ma क्या है? 0 क्योंकि बोथ आर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. h इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल दिया क्या है? And we know that every minimal equation is also an annihilating polynomial. So this is also 0 and this is also 0 plus ra. From here we get ra is equal to 0. अब हमें यहाँ से मिल गया ra जो है वो 0 है. So we get hx is equal to mx into qx. क्योंकि ra हमारे पास क्या है? 0 है. देखिए अभी हमें पॉइंट लिखा हुआ है. Therefore matrix A satisfy the equation. अब मैट्रिक्स जो A है वो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को लोअर देन द मिनिमल इक्वेशन. क्योंकि ये 0 आ रहा है बट दैट इज नॉट पॉसिबल. बेसिकली क्या है? यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं. हमें प्रूफ तो करना है कि r इज इक्वल टू 0 है. हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि r जो है वो नॉन जीरो है. r नॉन जीरो है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? r इज 0 आ रहा है. अब देखिए a सेटिस्फाई करे इसका मतलब ra हमारे पास क्या है? एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है. और हमें ये बात भी पता है कि ra की जो डिग्री होती है वो हमारी ma से जो है वो कम होती है. जो भी डिवीजर होता है उससे कम होती है ना. तो इसकी डिग्री कम है और ये एनिहिलेटिंग भी है. इसका मतलब we find
वन मोर मिनिमल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो ma से लेस है। हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल मिलेगी जिसकी डिग्री क्या है, ma से लेस है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि मिनिमल इक्वेशन जो होती है वही लोवेस्ट डिग्री की होती है। So therefore our supposition that r is not equal to 0 is wrong. Therefore r is 0. From here we get hx equal to mx into qx. एक बार दोबारा रिपीट करते हो, हमें क्या प्रूफ करना है बेसिकली कि मिनिमल इक्वेशन जो है मिनिमल पॉलिनोमियल एवरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है। अब देखिए बाय डिवीजन एल्गोरिथम मैंने ये पॉइंट लिख दिया। अब हम मुझे प्रूफ करना है कि rx जो है वो 0 है, ठीक है। मैं लेट कर देते हैं कि r जो है वो हमारे पास 0 नहीं है। हमने इसके अंदर a सेटिस्फाई करवाया तो हमें यहाँ पे r a इक्वल टू 0 आ गया, मतलब a मैट्रिक्स जो है वो r को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो एनिलेटिक पॉलिनोमियल तो होगी बिकॉज h भी 0 होता है तो भी वो एनिलेटिक पॉलिनोमियल होता है। और हमें बात भी पता है कि डिवीजन रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवीजर की डिग्री से कम होती है। सो वी फाइंड वन मोर मिनिमल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो हमारी गिवन मिनिमल पॉलिनोमियल है उससे कम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री ही सबसे कम होती है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0। इसके अंदर एक और क्वालिटी दे रखा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज यूनिक। मिनिमल पॉलिनोमियल इज यूनिक। इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल हर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू मिनिमल पॉलिनोमियल्स m1x एंड m2x। मिनिमल पॉलिनोमियल सपोज m1x जो है वो m2x को डिवाइड कर दे सपोज सम k फैक्टर से, ठीक है। सिमिलरली m1 भी एक मिनिमल पॉलिनोमियल तो वो भी m2x को डिवाइड करेगी बाय सम k फैक्टर। सो आफ्टर डिवाइडिंग बोथ दीस टू, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इन बोथ इक्वेशन से कि k जो है वो हमारे पास क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं यूनिक, क्योंकि हमने लेट अस सपोज की थी ना कि दो मिनिमल पॉलिनोमियल है लेकिन k की वैल्यू आ रही है 1, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है। Now let us see the next theorem. Now in this theorem we have to prove that the distinct roots of the characteristic equation are also the roots of the minimal equation. मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को हम इक्वल टू 0 पुट करके जो रूट्स निकालते थे, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज निकालते थे, तो वही जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो मिनिमल की होती है। हमें ये प्रूव करना है। नाउ फर्स्ट वी विल प्रूव दैट the root of m lambda is also the root of phi lambda. Here m lambda is the minimal equation and phi lambda is the phi lambda is the characteristic equation. Now here phi lambda is equal to 0 is the characteristic equation and m lambda is equal to 0 with the minimal equation. Now we know that every minimal equation divides any polynomial which we have done in the previous theorem. So let m lambda be the divisor of phi lambda. Now phi lambda is equal to m lambda into some q lambda. Q here be the quotient. Q lambda be any quotient here. Now जहाँ पे भी m lambda 0 देगा तो यहाँ 0 आएगा, तो phi lambda भी क्या होएगा 0, मतलब जो भी रूट m lambda का है वही रूट क्या होएगा phi lambda का। Now let us prove the converse. Now let phi 1 be any root of phi lambda. Let lambda 1 be any root of phi lambda. Now lambda 1 is the characteristic root of a, so we can write a minus lambda 1 I is equal to 0. हम एक characteristic equation ऐसे लिख सकते हैं। और this matrix this is not invertible. अब देखिए ये singular आ रहा है, ये matrix क्या आ रहा है singular, तो singular matrix not invertible होता है, invertible नहीं होता, ठीक है, inverse नहीं होता इसका। Let q lambda be the quotient and r be the remainder. अब हमने यहाँ पे r क्यों लिया रिमाइंडर, r लैम्डा क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हम डिवाइजर है, डिवाइजर की डिग्री क्या है हमारे पास 1, और हमें पता है डिवाइजर की डिग्री और जो रिमाइंडर की डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। इसकी 1 है तो इसकी क्या होगी 0, 0 मतलब एक कांस्टेंट, तो मैंने लेट कर लिया कांस्टेंट क्या है हमारे पास r, इसलिए यहाँ पे क्या आया r, एंड इट इज डिवाइडेड बाय phi lambda minus lambda I. तो लेट अस सपोज कि r जो है 0 नहीं है, रिप्लेसिंग लैम्डा बाय a, अब इसको a से रिप्लेस कर दे तो ma a minus lambda 1 I क्या हुआ प्लस r। तो वी नो दैट एवरी मिनिमल इक्वेशन इज आल्सो एन एनिहिलेटिंग इक्वेशन, एनिहिलेटिंग भी होती है, तो दिस इज 0, दिस इज a minus lambda I क्या हुआ प्लस r।
इनवर्स हमें पता है ना कि ए भी अगर आइडेंटिटी है तो ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और बी उसका क्या होता है इनवर्स। इसका मतलब ए यहाँ ये जो है यहाँ पे इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स हमारे पास क्या है ये। उसका मतलब तो हमने तो लेट किया था कि इसका इनवर्स होना नहीं चाहिए, तो मतलब हमारी सपोजिशन क्या है रॉन्ग। आर लैम्डा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज कमिंग इन्वर्टिबल। our supposition is wrong, therefore r is equal to 0। r 0 है तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 पुट करके, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो लैम्डा 1 क्या होगा इसका रूट। जैसे मैंने कहा x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होगा उसका रूट। तो यहाँ से क्लियरली प्रूव होता है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के अगर डिस्टिंक्ट आ गए ना तो हमें मिनिमल के रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के रूट डिस्टिंक्ट है तो मिनिमल के भी डिस्टिंक्ट होंगे और वही होंगे। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डेरोगेटरी। एन n स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डेरोगेटरी इफ इट्स डिग्री इज लेस देन n। कोई भी n स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसकी डिग्री n से कम आई मतलब उसकी मिनिमल इक्वेशन की डिग्री कम मान ली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से तो उसको बोलेंगे डेरोगेटरी। अगर उसकी डिग्री इक्वल कर ली है n के तो उसको बोलेंगे हम नॉन डेरोगेटरी। नेक्स्ट थ्योरम है इसका जनरल बहुत सारा राइटिंग में लिखा हुआ आपकी बुक में, इसका कोई प्रूफ ऐसे कुछ नहीं है, रीड कर दोगे मैं आपकी बुक में से। इफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट द मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होते हैं वो मिनिमल के भी डिस्टिंक्ट होंगे। तो मतलब जो है तीनों देखो सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहे हैं 2 3 5, तो मिनिमल के भी क्या आएंगे 2 3 5, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम ही होगी इक्वेशन की। ये आपकी बुक में वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्केलर इफ द मिनिमल इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 1। इफ का मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली मतलब कन्वर्स दोनों का प्रूफ करना है, अगर ये होगा तो ये होगा तो ये। अब बोले लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है अल्फा 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 अल्फा, बाकी जगह क्या होता है 0। सपोज इसको क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे x माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। मतलब a इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसकी डिग्री क्या है 1, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं डिग्री क्या होनी चाहिए 1। लेट अस सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है 1 है इसकी। अब ये प्रूफ करना जो मैट्रिक्स होगा क्या होगा वो स्केलर। अब a इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि मिनिमल इक्वेशन है ना, मिनिमल इक्वेशन डिग्री 1 की, तो इसको सेटिस्फाई करेगा that is equal to 0, so a is equal to 5i। from here we get that a is a scalar matrix। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। now in this question we have to find a minimal equation and show that it is non derivatory। पहले इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसके रूट्स निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हो, उसके डायगोनल एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं रूट्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लें फिर भी 2। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आपको याद होगी ना a माइनस लैम्डा आई। तो फ्रॉम हियर वी गेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज 1 माइनस 4 and 7। we know that the distinct roots of characteristic equation are also the root of your minimal equation। मिनिमल इक्वेशन के भी वो रूट्स होंगे ना, तो मिनिमल इक्वेशन भी के भी रूट्स होंगे 1 माइनस 4 7। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 1 x प्लस 4 x माइनस 7। ये मिनिमल इक्वेशन है, मिनिमल इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या होगी 3 और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की भी डिग्री क्या है 3। अब दोनों की डिग्री इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या है नॉन डेरोगेटरी। यही हमें इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल 2 ऑब्टेन द मिनिमल इक्वेशन फॉर दिस मैट्रिक्स एंड शो दैट a इज डेरोगेटरी। अब हमें इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अब इस क्वेश्चन में पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई, दैट इज 7 माइनस लैम्डा 4 minus 1 4 minus 7। let me check minus 7 है ना, नहीं plus 7 है यहाँ। minus 1 4 minus 4 minus 4 4 minus लैम्डा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ
रो टू डिटर्मिनेंट इसका इक्वल टू क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा। तो रो टू थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, रो टू और रो थ्री को मैं ऐड कर देती हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 0 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 4 7 माइनस लैम्डा माइनस 1 7 माइनस लैम्डा 4 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से 3 माइनस लैम्डा मैं कॉमन निकाल देती हूँ, आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 एंड 4 7 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 1 1। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ ताकि मुझे एक और जीरो मिल जाए यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 0 यहाँ आ जाएगा 1 0 4 8 माइनस लैम्डा 5 7 माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 माइनस। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ यहाँ से, तो मुझे मिल जाएगा 3 माइनस लैम्डा तो है ही बाहर, 7 माइनस लैम्डा इंटू 8 माइनस लैम्डा माइनस 20। और इस 3 माइनस लैम्डा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 इंटू 56 7 जो 15 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 20। तो फ्रॉम हियर आई गेट 3 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा 36। फ्रॉम हियर आई गेट लैम्डा माइनस 12 लैम्डा माइनस 3 और यहाँ से 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इधर ले जाते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 12 हमारे पास क्या बन गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें फाइंड आउट करनी है मिनिमल इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बने, लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 12। ठीक है, अब हम करेंगे हिट एंड ट्राई। देखिए हमें इतनी बात तो पता है कि डिस्टिंक्ट रूट इसके जो होंगे वो उसके भी रूट्स होंगे, तो इसके डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं 3 3 12, तो डिस्टिंक्ट रूट है 3 और 12। तो इससे इक्वेशन बनाते हैं। लेट अस सपोज मिनिमल इक्वेशन, सपोज मिनिमल इक्वेशन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अगर ये मिनिमल इक्वेशन है तो अगर हम इसमें एफ ए पुट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। अगर वो 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये मिनिमल इक्वेशन नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो मिनिमल इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 12, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वही हमारे पास क्या बन जाएगी, मिनिमल इक्वेशन। पहले इसको चेक करते हैं कि मिनिमल इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही। उसके लिए हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए a स्क्वायर 7 4 माइनस 1 4 7 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 7 4 minus 1 4 7 minus 1 minus 4 minus 4 4. We had 49 plus 60 plus 4, that is 69. 28 plus 28 plus 4 60 60, that is minus 7 minus 4 minus 4 8 15। let me check, ये आ रही है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, इसको करेंगे 69 है ना, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15 60 60 24। मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आती हो। अब ए स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पर करते हैं ए स्क्वायर 69 60 माइनस 15 60 69 माइनस 15 माइनस 60 माइनस 60 24 माइनस 15 ए क्या है 7 4 माइनस 1 4 7 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 प्लस 36 36 36 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 69 7 85 प्लस 36 60 माइनस 60 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 60। तो सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा बेटा 0, यहाँ 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या है, मिनिमल इक्वेशन है। अच्छा हमें ये प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव है या नहीं। अब देखिए इसकी डिग्री जो है आ रही है 2 और डिग्री कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या 3, तो लेस है ना, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास डेरिवेटिव। एग्जाम्पल 3 तो ट्राई कीजिएगा। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4।
एग्जाम्पल 4 में बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। कभी कभार हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद उसके रूट्स पता नहीं लगते, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो डेरोगेटरी है या नॉन डेरोगेटरी है। इस क्वेश्चन में आपका एग्जाम्पल उस टाइप से भी सॉल्व करके दे रखा है। जैसे इसके हमें रूट्स पता लग रहा है 2 2 1, तो मिनिमल इक्वेशन क्या होगी x-2 x-1। पहले चेक करते हैं कि मिनिमल इक्वेशन होएगी या नहीं होगी। इट शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज दिस। इस केस में अगर आपको रूट्स नहीं पता लगते हैं तो आपके पास एक और मेथड दे रखा है, दैट इज a² + aa + bi इज इक्वल टू 0। हम अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं इक्वेशन ये a² + ai + bi इज इक्वल टू की डिग्री 2 की है। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, अगर यहाँ से मुझे सेम वैल्यू मिल रही है a और b की तो यही मिनिमल इक्वेशन है। अगर नहीं मिल रही तो मिनिमल इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बराबर। अब इस क्वेश्चन को इस मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड आउट करते हैं a का स्क्वायर, दैट इज 2 3 4 0 2 -1 0 0 1, अगेन 2 3 4 0 2 -1 0 0 1, दैट इज 4 6 + 6 that is 12, 8 - 3 + 4 that is 8 + 1 that is 9, 0 4 -2 -1 -3 2 3 4। हमें यहाँ से मिल जाएगा 4 12 9 0 4 -1 2 3 4। a into a 2 3 4 0 2 -1 0 0 1 प्लस b b b, बाकी जगह क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। 4 + 2a + b 12 + 3a 9 + 4a, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 0 4 + 2a -1 - a, यहाँ प्लस b भी आएगा 2 3 4 + a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। देखिए यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है -4, और यहाँ से भी -4 आ रही है क्या। जस्ट वेट अ व्हाइल, इसकी मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे 0 0 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 0 1 आ रहा है, 0 0 1, यहाँ पे भी आ रहा है 0 0 1, तो आ जाएगा 0 0 1 + a + b। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है -4 और यहाँ से आ रही है -9/4, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो मिनिमल इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 नहीं है, इसका मतलब उसकी डिग्री 3 है। तो मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही हमारे पास क्या है, मिनिमल इक्वेशन है। सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, शो दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ग्रेटर देन 2 इज डेरोगेटरी। हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है वो डेरोगेटरी है। देखिए कोई भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम बात करें ना तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, x-1 = 0 सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब उसकी मिनिमल इक्वेशन यही है और उसकी डिग्री क्या है 1। इसका मतलब क्या है, उसकी डिग्री 1 है और कोई भी मैट्रिक्स ग्रेटर देन 2 इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब डिग्री 1 है। और सपोज ऑर्डर n से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि n जो है वो हमारे पास 2 से बड़ा है। I hope it is clear to you. By this chapter is completed. Let's meet in the next video.